Hi kids, this is Dr. Ruhani, Master Teacher of Biology at Vedantu. Today I am here to share a very important topic which will help you in exams like KVPYs and Olympiads. So kids, if you hold love for biology and you are very much excited to know facts about bio, then please stay tuned to this channel and keep watching the videos which will be shared with you on a regular basis, and they will pave your way for the exams like KVPYs and Olympiads. So what are we going to talk today? Today, students, we are going to talk about a very interesting topic, which is the Steller organization. Now please mind it here, बच्चों. This Steller organization does not refer to the stellar organization which is for the stars. I'm pretty sure आपने stellar word STELLAR ज्योग्राफी में पक्का से पढ़ा होगा. बट ये स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये देखो आगे वर्ड देखो क्या हमने लिखा है. वी हैव रिटन वैस्कुलेचर. सबको पता है वैस्कुलेचर क्या होता है? वैस्कुलेचर वर्ड बच्चे आता है वैस्कुलर टिश्यू से, और आप सब ने 9th क्लास से वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा होता है, राइट? सो व्हाट कम्स अंडर द वैस्कुलर टिश्यू? वैस्कुलर टिश्यू में दो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. फंक्शंस पता है सबको? Xylem is for the water and mineral conduction. Phloem is for the food translocation. So, xylem and phloem together form the vascular tissue of the plant, जो आपको यहाँ slide में भी दिख रहा है. Very pretty organization. And इसी को base बना के the way these xylem and phloem are present in the plant, उसको हम Steller organization कहते हैं. Now, Steller word comes from a very simple word, that is steel, right? So, बच्चों चलो define करते हैं steel क्या है. Steel is the central core of the axis. Core क्या होता है? जो plant के बिल्कुल center में run कर रहा है उसको हम steel बोलते हैं. Simple words में अगर हम बोलें, then everything that is inner to the endodermis is called as steel. बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म सुनी होगी, और कुछ हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये टर्म्स नई हैं. So before I move to the Steller organization, I will discuss what these terms are in a brief outlay of the plant anatomy, right? But before that, ये देखो steel को define किया गया है to contain xylem, अभी बोला था water and mineral conduction के लिए, phloem for food translocation, पित्त पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स में द पिथ मे बी एब्सेंट. सो पिथ मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट. एंड इनर टू द एंडोडर्मिस जो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं उसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं. सो बेसिकली स्टील कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, एसोसिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स जो कि पिथ में भी हो सकते हैं, पेरिसाइकल में भी हो सकते हैं, which are separated from the outer cortex by a layer of cells called as endodermis. चलिए बच्चों, जैसे मैंने बोला था टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं. सबको टिश्यूज के बारे में कुछ कुछ तो पता है. The outer layer of cells, I will not draw a very big diagram, I'll just brief you out. So this is a single layered cells which are on the topmost above of part of the plant. So above के लिए word बच्चा आता है epi. So this is the epidermis. Similar single layer of cells जो कि center में present है, this is towards the inner side. So inner के लिए word क्या होता है? endo. So this is the endodermis. Okay,
एपिडर्मिस जो अबव ऑल आ गया, एंडोडर्मिस जो विद इन आ गया। अब इस एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में कुछ कुछ तो सेल्स होते हैं, राइट? इस पूरे के पूरे रीजन को हम नॉर्मली कॉर्टेक्स बोल देते हैं, बट कॉर्टेक्स बच्चों इटसेल्फ 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। लेट्स सी, देयर माइट बी सम थिक सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कुछ ऐसे थिक सेल्स होंगे, सो इसको बोला जाता है, बिकॉज वो एपिडर्मिस के बिलो हैं, बिलो के लिए वर्ड क्या होता है? हाइपो। सो दिस बिकम्स द हाइपोडर्मिस, दिस इज द कॉर्टेक्स प्रॉपर, और इसकी डिमार्केटिंग लेयर क्या आ जाती है? एंडोडर्मिस। सो अगर मैं आपको कॉर्टेक्स बताऊं, then all these 3 together form the cortex. So cortex के बच्चों 3 components रहते हैं। The one which is beneath the epidermis उसको हम hypodermis बोलते हैं, उसके नीचे कॉर्टेक्स प्रॉपर आता है और इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस आता है। अब एंडोडर्मिस के विद इन जो भी आता है हम उसको क्या बोलते हैं? अभी हमने किया था, इट इज कॉल्ड एज द स्टील, है ना? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, जिसमें फ्लोएम आउटर साइड पे है, जाइलम इनर साइड पे है। Then there would be a few layers of cells just beneath the epidermis. इनको क्या बोला था? सर्कुलर है, क्योंकि पूरा एंडोडर्मिस सर्कल के फॉर्म में है, पेरिफेरी पे है, so these layers are called as the pericycle. Okay? इसके सेंटर में whether present or not present would be the pith. पिथ से जो पेरेन्काइमा सेल्स विद इन द वैस्कुलर बंडल्स, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आ रहा है, उसको हम पिथ रेज बोलते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज द वैस्कुलर बंडल। सो बच्चों, ये कुछ टर्म्स थी प्लांट टिश्यूज, प्लांट एनाटॉमी के रिलेटिंग, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है जब हम स्टील डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सो अब मैंने आपको ये जिस्ट दे दिया है, नाउ आई कैन फ्रीली यूज दिस टर्म सो दैट आप इनको समझते जाएं। सो लेट्स रिपीट, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बीनीथ सारा का सारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की फर्दर 3 सब लेयर्स आ जाती है, 3 में वो डिफरेंशिएटेड होता है, हाइपोडर्मिस, द कॉर्टेक्स प्रॉपर एंड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर सेंटर कोर तक जितने भी टिश्यूज आते हैं उन सबको हम एक नाम से बुलाते हैं, एंड दैट एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्टील. So steel, I repeat, includes xylem, it includes phloem, it includes pith if present, pith rays, and also the pericycle. So this is all what is the component of steel. I hope you've understood what a steel is. Let's see, ये तो चलो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, एक क्लैरिटी के लिए दिस इज द जनरल आउटले। देखिए, एपिडर्मल हेयर हो गया, क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स प्रॉपर हो गया, एंड देन एंडोडर्मिस। तो इन तीनों को बच्चों हम इकट्ठे क्या मार्क कर सकते हैं? दिस इज द कॉर्टेक्स, यस। देन दीज लेयर्स, पेरिसाइकल आ गई, या तो पेरेन्काइमेटस होगी या कोलेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमेटस, वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. Then comes the phloem, then is the meristematic tissue, that is the cambium. फिर जाइलम आ गया, जाइलम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनको हम मेडुलरी रेज या फिर पिथ रेज बोलते हैं, राइट? And then comes the centermost, which is called as the pith, which may or may not be present. So this is the entire organization right from the epidermis to the pith. ठीक है? चलो बच्चों,
आगे चलते हैं. What is the classification of the Stiller organization, of how many types it is? मैं बहुत धीरे धीरे करके एक एक टाइप करके करवाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ में आ जाए. राइट? जब हम स्टील की बात करते हैं बच्चे, अब स्टील एकदम से कम्प्लेक्स तो हुई नहीं होगी. जैसे ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके बहुत कम्प्लेक्स तक गए थे, सिमिलरली स्टील भी बहुत सिंपल स्टील से स्टार्ट होके बहुत कम्प्लेक्स तक इवॉल्व हुई. राइट? अब स्टील जो कि वैस्कुलर टिश्यू के साथ कंसर्न्ड है, कौन से प्लांट ग्रुप में ये डेवलप होना शुरू हुई थी? टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज द फर्न्स, because the first true vascular system evolved in the pteridophytes. Okay? अब स्टील को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इट इज ऑफ टू types. It is classified into two types. The first one is called as the protosteel. प्रोटो का मतलब ही, प्रो का मतलब ही फर्स्ट होता है. प्रोकैरियोट्स आप सबको पता है, द फर्स्ट primary nucleus like genetic material when it was present, the simplest cell that evolved was prokaryotic. It gave rise to eukaryotic, right? So u means true, pro means first. So first steel, that is protosteel, and second आ जाता है siphonosteel. Okay? अब साइफोनोस्टील में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या था बच्चे? साइफोनोस्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट है, बट जो फर्स्ट इवॉल्व्ड स्टील थी इसके अंदर पिथ वाज नॉट देयर. सो व्हाट वाज देयर इन द प्रोटोस्टील? प्रोटोस्टील में बच्चे देयर इज द जाइलम, which was surrounded on the outer side by phloem. So this is what is protosteel. Okay? अगर हम साइफोनोस्टील की बात करते हैं, so there is the pith in the center. उसके आजू बाजू सेम स्ट्रक्चर, there would be xylem, X for xylem, and it will be followed up by phloem. ठीक है? सो मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया. प्रोटोस्टील फर्स्ट फॉर्म्ड, मोस्ट प्रिमिटिव, एक सेंट्रल सिलेंडर जाइलम का और उसके आजू बाजू फ्लोएम का सिलेंडर, खत्म. देन इज साइफोनोस्टील, देयर इज पिथ इन द सेंटर, उसके आजू बाजू वन कंप्लीट सर्कल ऑफ द जाइलम फॉलोड बाय वन कंप्लीट सर्कल ऑफ द फ्लोएम. ठीक है? चलिए, सो क्या प्रोटोस्टील सिर्फ इतनी सी थी? नो. हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो धीरे 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 स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते रहते हैं, कम्प्लेक्स बनते रहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ protosteel which evolved in the pteridophytes and came to the vascular structure of dicots and monocots that we find today. Right? ये वाला आप स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सो इसको अगर मैं शेड अप कर दूं, सो दिस एंटायर, अब क्योंकि ये हम प्रोटोस्टील की बात कर रहे हैं तो पिथ तो होगी नहीं. सो द सेंट्रल सिलेंडर इज ऑफ जाइलम एंड इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट. ठीक है? सिंपल हो गया. अब सेकेंड, जब ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, राइट, तब क्या हुआ? तब बच्चे जाइलम ने अपनी रेडिएटिंग आर्म्स बनानी शुरू कर दी. समझ रहे हो? पहले क्या था? वो इंटैक्ट सर्कल था, फिर उसने अपनी बाजुएं बनानी शुरू कर दी ताकि जो बाहर वाला फ्लोएम है वो जाइलम के अंदर अंदर आना शुरू हो गया. करेक्ट? एंड थर्ड में क्या हुआ? थर्ड में बच्चे ये आर्म्स आपस में जुड़ गई. अब जब ये आर्म्स आपस में जुड़ गई, मतलब जो फ्लोएम साइड से पेनिट्रेट कर रहा था वो पूरा एक प्लेट ऑफ फ्लोएम बन गई.
So this structure evolved into the alternating plates of xylem and phloem. ये xylem है, ये phloem है. ये xylem phloem तो मैंने आपको मार्क कर ही दिया. चलिए xylem के लिए X, phloem के लिए P. अब देखो क्या हुआ. Isn't it wonderful? ये पूरा का पूरा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फ्लोएम का आ गया, ये जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया. Isn't it? So from a complete one circle, अब one सिंगल के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? हैप. राइट. सो इस वाले प्रोटोस्टील को हम बोलते हैं हैप्लोस्टील. क्या बोलते हैं बच्चों? हैप्लोस्टील. हैप्लोस्टील मीन्स सिंगल सर्कल और सिंगल सिलेंडर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय अ सिंगल सिलेंडर ऑफ फ्लोएम. जब उसने रेडिएटिंग आर्म्स फॉर्म कर दी, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिनोस्टील. एंड जब उसने रेडिएटिंग आर्म्स को जोड़ लिया, देन द थर्ड व्हाट इवॉल्व्ड इज द प्लेक्टोस्टील. राइट. प्लेक्टो वर्ड का बच्चे वर्ड मीनिंग होता है प्लेट लाइक. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, so there are plates of xylem phloem alternating with each other, hence it is plectosteel. Right. So I hope you must have understood what are the three types of protosteel. Let's revise it once again before we move ahead to the description. So there are three types of protosteel. Protosteel, the first type of steel, the haplosteel, जिसके अंदर there was a complete cylinder of xylem surrounded by cylinder of phloem. Actinosteel, जिसके अंदर xylem ने radiating arms form कर दी. And plectosteel, plectosteel was जिसके अंदर there were alternating plates of xylem and phloem. So this completes the first type of steel, that was the simplest, that is the most primitive, and which is called as the protosteel. चलिए रिवाइज कर लेते हैं इनको. प्रोटोस्टील, simplest steel, most primitive type, solid core of xylem surrounded by a cylinder of pith with surrounded by a cylinder of phloem with no pith at all. All the other steels have evolved from this in the course of evolutionary class specialization. Three types अभी बता के हटी हूँ, haplosteel, actinosteel and plectosteel. देखते हैं haplosteel कैसा होता है. Haplo protosteel, solid cylinder, smooth core of xylem surrounded by phloem. ये देखिए ये anatomy में ऐसा दिखता है. So this entire red tissue, red stained जो होता है, saffronine stained होता है, dead tissue है xylem, and the green one is the living tissue. So this is phloem. So this is xylem and this is phloem. Xylem बच्चे dead है और dead tissue किससे stain होता है? saffronine से. Okay. Phloem is a living tissue और फ्लोएम किस स्टेन से स्टेन होता है? फास्ट ग्रीन. वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिनोस्टील या एक्टिनोप्रोटोस्टील. सेंट्रल कोर जाइलम ने क्या किया? जाइलम ने रेडिएटिंग आर्म्स फॉर्म कर दी. इट इज नॉट स्मूथ बट थ्रोन इनटू रेडिएटिंग रिब्स with the protoxylem at the extremities. Protoxylem क्या होता है? first formed xylem and phloem alternating with its rays. So जो rays बनी उनके अंदर अंदर क्या आना शुरू हो गया? phloem आना शुरू हो गया. राइट. सो ये देखिए ये रेडिएटिंग रे ऑफ जाइलम है और ये इसके बीच में फ्लोएम आ गया. ये रे ऑफ जाइलम है, ये इसके बीच में फ्लोएम आ गया. सो दिस इज एक्टिनोस्टील. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड
Plectostele, xylem occurs in the form of small parallel bands which alternate with phloem. यही हमने ड्रॉ किया था, xylem phloem xylem phloem. अब इसमें से xylem कौन सा है? Of course the red one happens to be xylem. क्या रीजन बताया था? Xylem is a dead tissue और dead tissue सैफ्रानिन स्टेन से स्टेन होता है जो कि मजेंटा स्टेन देता है. ठीक हो गया. सो ये था बच्चों द फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टील, द मोस्ट प्रिमिटिव विच इज कॉल्ड एज द प्रोटोस्टील. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज साइफोनोस्टील. आई होप यू कैन ऑल लेबल दिस डायग्राम वेरी वेल. क्या होएगा? व्हाट इज दिस सेंट्रल ब्लू पोर्शन? चलिए लेबल करते हैं आपके लिए. स्पेसिफिक पॉइंट क्या बताया था? पिथ इज प्रेजेंट इन अ साइफोनोस्टील, फॉलोड बाय मजेंटा स्टेन. आंख बंद करके क्या करोगे? जाइलम. ग्रीन फॉर द लिविंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम. सो बाकी सब सेम है. क्या डिफरेंस आ गया है? पिथ हमने सेंटर में इंक्लूड कर दी है, राइट? चलिए, सो साइफोनोस्टील को हम मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी बोलते हैं. A steel in which the pith is present in the central region. It evolved from protosteel. Obviously जो first formed है उसी से सब steels evolve हो रही है, वो हमने पहले ही कर लिया है. कैसे evolve हुआ? By degradation. Degradation means destruction or reduction of tertiary elements into parenchyma and represents a stage in evolutionary advance. So जैसे जैसे स्टील्स कम्प्लेक्स होती गई, दैट रेफर्ड टू एडवांसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट ग्रुप्स. टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स. सो दिस इज व्हाट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स. चलिए, साइफोनोस्टील बच्चे इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, the ectofloic siphonosteel and amphifloic siphonosteel. रटना पड़ेगा. बहुत सारे बच्चे रटेंगे नहीं. बायो को बच्चे अब एक नए पर्सपेक्टिव से हम पकड़ना शुरू करते हैं. बायो सिर्फ जैसे बाकी बच्चे सोचते हैं कि भाई उसमें तो बहुत कुछ मगअप करना है, बहुत कुछ सिर्फ लर्न करना है. आप बच्चे अगर बायो को वर्ड्स से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे तो आपको सो कॉल्ड रटना नहीं पड़ेगा, राइट? चलिए, इसी के साथ लेट्स टेक दिस एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड्स एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक, जो कि बहुत कम्प्लेक्स दिखते हैं बट बिल्कुल भी कम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं. व्हाट डज द वर्ड एक्टो मीन्स? Ectoplasm, ectoderm. So ecto word means outside. Okay. Phloic word बच्चे vascular tissue का component phloem से आता है. So क्या समझते हो आप इसके बारे में? सेंटर में पिथ आ गई, उसके बाद जाइलम आ गया, और जब उसके बाहर कंप्लीट सर्कल ऑफ फ्लोएम है, फ्लोएम फॉर्मिंग द आउटर सर्कल इज एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील. अब दूसरा देखो, एम्फी, बहुत कॉमन वर्ड है एम्फीबियंस. Why are frogs called as amphibians? Because they have a dual mode of life. They can live in water as well as on land. सो एम्फी वर्ड जहां पे भी आ जाता है इसका मतलब होता है डुअल. फ्लोइक का वर्ड हमने ऊपर अभी पकड़ा है, दैट इज फ्लोएम. अब डुअल फ्लोएम का मतलब क्या है? जब फ्लोएम आउटर साइड पे तो है ही है, इनर साइड पे भी फ्लोएम आ जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज एम्फीफ्लोइक. अब इनर साइड कहाँ आएगा? क्या पिथ के इनर साइड पे होएगा? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पिथ को हमने सेंट्रल कोर का हिस्सा बोला है. सेंट्रल कोर को तो हम छेड़ ही नहीं सकते. तो बचा क्या? इफ आई सैंडविच जाइलम बिटवीन टू फ्लोएम, तो सीक्वेंस क्या होगा? आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम एंड द पिथ. तो हो गया जाइलम के दोनों आजू बाजू आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड फ्लोएम.
तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीफ्लोइक. Am I clear with the terms? Ectofloic with a ring of phloem only on the outer side. Amphifloic with 2 rings of phloem, one on the outer side of xylem and one towards the inner side of xylem. Beautifully यहाँ पर हम देख सकते हैं. चलिए, let's label this. This becomes the pith. दोनों को इकट्ठा लेबल करते हैं. The red one has to be xylem. And the green one, see, the phloem forming a single ring on the outer side of xylem is ectofloic. Now here you find 2 green circles. So the outer phloem and the inner phloem. अब जब आउटर एंड इनर फ्लोएम में डिफरेंशिएशन हो गया तो चलिए बच्चों इसको लेबल करते हैं. दिस वन बिकम्स द एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील एंड दिस बिकम्स एम्फीफ्लोइक. आई विल जस्ट राइट अ शॉर्टकट ऑफ इट. इज दिस पॉइंट क्लियर? लेट्स मूव टू द थ्योरी. So ectofloic diagram देखिए, ये हो गया pith, then a complete circle of xylem and then a complete circle of phloem on the outer side. So phloem occurs only on the outer surface of the xylem. Cylinder is ectofloic siphonostele. Amphi means dual. Phloem may be present both externally as well as internally. Externally to xylem as well as internally to xylem. ये बात याद रखिएगा, not to the pith, right? Such that xylem is sandwiched between 2 phloem on either side. So this is amphifloic. So can you see out here? ये वाला पोर्शन बच्चे जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूं, दिस इज व्हाट इज xylem. और ये xylem किसके बीच में सैंडविच्ड है? दिस ग्रीन मार्किंग दैट आई एम डूइंग, एंड ग्रीन इज फॉर द फास्ट ग्रीन, दैट इज phloem. समझ में आ गया? So green wala is the phloem and for your reference red one is this. Clear everyone? So 2 types of siphonostele, ectofloic and amphifloic. अब बच्चे जब हम simple pteridophytes से towards the last group ferns जाते हैं, then also there is complexity coming. जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे उनमें लीफ स्ट्रक्चर्स ही नहीं थे, बट जो हाईली इवॉल्व्ड टेरिडोफाइट्स थे उसमें तो भाई साइड ब्रांचेस भी आ गई, उसमें तो लीव्स भी आ गए. तो लीव्स को भी तो वैस्कुलेचर चाहिए, और लीव्स को वैस्कुलेचर कहां से मिलेगा? फ्रॉम वेयर विल द वैस्कुलेचर गो इनटू द लीव्स? अब इमेजिन करो थोड़ा सा, ये सेंट्रल स्टेम चल रही है जिसमें xylem phloem है, और इसके बाजू में कट के एक लीफ आ गया. सो व्हाट विल प्रोवाइड वैस्कुलेचर टू दिस लीफ? द वैस्कुलेचर ऑफ xylem एंड phloem will go from the stem vasculature into the leaf. ठीक है? अब अगर हमने जिस पॉइंट पे लीफ अटैच्ड है, अगर वहां से हमने स्टेम का सेक्शन काटा तो हमको क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि एक तो सेंट्रल सिलेंडर ऑफ xylem phloem चल रहा है, और जहां से वो साइड पे वैस्कुलेचर दिया गया है वहां पर एक गैप आ गया है. सो देयर विल बी 2 वैस्कुलेचर स्ट्रैंड्स दैट यू विल बी सीइंग. वन जो कि कुछ हॉर्स शू शेप का होगा, और जहां से वो लीफ में गया है वहां पे अ स्मॉल पार्ट ऑफ xylem एंड phloem वुड बी देयर. So this is what is called as the occurrence of branch gaps or leaf gaps, which was the next step of evolution. ये देखिए, ये मेन स्टील है
नोड रीजन, नोड को आप कैसे डिफाइन करते हो? ऑन विच द लीव्स आर प्रेजेंट। ओके, इसी को हम नोड बोलते हैं। सो नोड के ऊपर ये देखिए, यहां से एक लीफ गया, तो अगर मैं इसको विजुअलाइज आपको करवाऊं कि व्हाट वुड दिस स्टेम बी लाइक, दिस इज द मेन स्टेम, it bears one leaf here and it bears one leaf here, ताकि इसका जो ये वाला स्टील है that is the stem steel, right? और यहां से I'll just change the color, यहां से जो एक जाइलम फ्लोएम इस लीफ में गया और एक जाइलम फ्लोएम इस लीफ में गया, वो ये वाला है। ठीक है, सो बीच में ये गैप आ गया, दिख रहा है आपको गैप, दिस इज कॉल्ड एज द लीफ गैप। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेम जिसके ऊपर दो लीव्स हैं। अब लीफ के एक्सिल से एक ब्रांच भी निकल सकती है, तो ये गैप या तो लीफ गैप होगा या फिर ब्रांच गैप होगा अगर साइड ब्रांचेस फॉर्म होंगी। सो द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप क्या था, चलिए लिखते हैं। द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी step was the formation of leaf and branch gaps, जिसकी वजह से हमारे इंटैक्ट सिलेंडर स्टील को अब कुछ कुछ डाइसेक्टेड व्यू मिल गया। सो व्हेन दिस डाइसेक्टेड व्यू केम, ये देखिए ये क्या है, अब ये आपको व्हाइट गैप दिख रहा है। सो दिस बिकम्स द स्टेम स्टील, और ये वाला जो पोर्शन है ये से लीफ में चला गया, राइट? और ये क्या है, दिस इज द लीफ गैप। अब ये लीफ गैप बच्चों, व्हाट वाज दिस स्ट्रक्चर? इफ यू रिकॉल इट, दिस वाज एक्टोफ्लोइक, दिस इज एम्फीफ्लोइक। सो दोनों टाइप्स की साइफोनो स्टील में जब एक एक लीफ गैप आया, बिकॉज दिस होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स वन लीफ presence, so it is called as Solino steel, right? Solino word comes from solitary, which means single. So Solino steel is a steel with only how many leaf gaps? Only one leaf gap. So beginning हुई formation of leaves की, and what will be the next step? एक लीफ गैप की जगह पे बहुत सारे लीफ गैप्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्टेम गैप्स आ जाएंगे. So let's evolve along with the evolution of the steel. Solino steel, ये देखिए horse shoe shaped structure, या आप exact anatomical diagram में भी देख सकते हो. And there is a small vasculature which goes to the leaf. This becomes the leaf gap. So leaves in ferns require more vascular supply, and these leaves receive vascular supply from the stem. ये बहुत important है समझना. Now due to the formation of one leaf gap, steel becomes horseshoe shaped, and this steel is called as the Solino steel. Solino word is for solitary. चलिए ये भी लिख देते हैं. So single leaf gap के साथ जो बना, that is Solino steel. Okay? अब मैंने क्या बोला था? A much dissected view when many leaf gaps and many branch gaps arises, it is called as dictyosteel. So dictyosteel, which is also polysteel. Poly also means many. So many leaf gaps when arise, it becomes a dictyosteel due to production of many leaf gaps in the Solino steel, which was with a single leaf gap first. Main cylinder breaks down into many fragments, and this
होल इज कॉल्ड एज डिक्टियोस्टील। अब जैसे हमने सोलिनोस्टील एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक दोनों में की थी, सिमिलरली बच्चे डिक्टियोस्टील भी दोनों एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक में आती है। सो लेट्स विजुअलाइज इट, सी। सो दिस is again ectofloic. This with a double phloem is amphifloic. And look out here, 1, 2, 3, 4, 5 leaf gaps in both of them. So this is better called as the eustele. U word means the true stele for ectofloic and dictyostele for amphifloic। ठीक हो गया। अब बच्चे अगर आप इसको यहां पर हम लेबल कर सकते हैं, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। अब इसको बच्चे अगर मैं एक मॉडिफाइड वे से ड्रॉ करूं, ध्यान दीजिएगा इसको, आई विल जस्ट मेक द आउटलाइन बाउंड्री ऑफ इट। ये देखिए, ये 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6। ये क्या बना? इफ आई मेक इट this way, which is with a cambium, it has phloem, it has xylem. Is this not a vascular bundle of today's dicots? Batao. So this is the beauty of evolution of steel. सो ये 6 वैस्कुलर बंडल्स एक कंप्लीट सर्कल में जब स्टेम में प्रेजेंट है, इट रिजेंबल्स द वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन अ डाइकॉट स्टेम ऑफ टुडे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूस्टील। तो इस वैस्कुलर बंडल को बच्चे आप क्या बोलोगे? इफ यू आर अवेयर ऑफ द टर्म्स conjoint collateral vascular bundles. Collateral means present on the side. So when xylem and phloem are present on the same radius side by side, it is conjoint and collateral. और इसको अगर मैं एक बंडल को बनाऊं आपके लिए, तो देखिए, this is the bundle. It is somewhat like this. So this is the outer phloem. This is the inner phloem. Sandwiched in between is the xylem. This now becomes the outer cambium, meristematic tissue. Dicot है तो cambium है, inner cambium. समझ में आया ये? अब क्योंकि xylem and phloem together present है, this bundle is also conjoint. But since phloem is on both the sides, both the lateral sides, these are bicollateral. Right? सो डिक्टियोस्टील ने बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म किए, एंड जब एक्टोफ्लोइक के अंदर डिक्टियोस्टील जैसे बहुत सारे लीफ गैप्स आए, तो उसने यू स्टील को फॉर्म किया. यू स्टील इज पर्टिकुलर फॉर द डाइकॉट्स. Am I clear, kids? So this is how from an intact cylinder of xylem and phloem we came to the presence of single vascular bundles which are arranged in a complete circle in the stem. चलिए
रिवाइज करते हैं. यू स्टील वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग कंप्लीट सर्कल. अभी आप देखकर हटे हो, ये देखिए आपके सामने यहां पर भी कंप्लीट सर्कल है. And medullary rays, which were also called as the pith rays, present between the vascular bundles. Such type of steel is found in the stem of gymnosperms and dicot plants. Then what about monocots? बच्चे एक स्टार पॉइंट बता रही हूं. Monocots, which is with reduction, are more evolved than dicots as per taxonomy. Okay, so what in the monocots? Monocots के अंदर बच्चे लास्ट टाइप ऑफ स्टील आती है which is atacto steel. सबसे डिस्टिंक्ट है. Many vascular bundles distributed in ground tissue which is parenchymatous. एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एब्सेंट रहती है. हाईली डेवलप्ड है क्योंकि मैंने मोनोकॉट्स को अभी हाईली इवॉल्व्ड बोला है. So if this is the entire ground tissue, there will be smaller vascular bundles towards the periphery. Vascular bundle बोल रही हूँ मतलब it will contain both xylem and phloem, and comparatively larger vascular bundles towards the center. Phloem on the outer side, xylem on the inner side, and because it is monocots and monocots show no secondary growth, hence there will be no cambium. तो जो हमने एक वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के बीच में लाइन ड्रॉ की थी डाइकॉट्स के केस में, यहाँ के वैस्कुलर बंडल्स में हम गलती से भी वो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. दैट इज वाई सिंस देयर इज नो cambium, these bundles of the monocots are said to be closed vascular bundles. If these are closed, what do you call the vascular bundles of the dicots? Because they are open for growth, they are going to show secondary growth. The cambium is going to get active. Therefore, the bundles are said to be open. So, dicot bundles के लिए conjoint, collateral and open vascular bundles, or conjoint, bicollateral and open vascular bundles, and monocots के लिए conjoint but collateral but closed vascular bundles. Am I clear? So kids, this was all about the evolution of steel, right from the very simplest, which started in pteridophytes, that is the protosteels, to the most evolved, that is atacto steel of the monocots. So kids, I hope you liked the video, and this was something which really would have fascinated, and many of you must have thought कि भाई ऐसे vascular bundles एकदम से evolve कैसे हो गए. So बच्चों, to answer many of you your ऐसे कैसे हो गए, how did this happen, how did it evolve, so to answer to all of these queries, please do stay tuned on the channel for many such videos that are upcoming. Thank you so much. Bye.